القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ شکر گزاری کی پہلی اقدس قربانی۔ مسیح خدا میرے عزیز مومن، آج سینٹ تھامس پیرش کے علاقہ ملک کالونی کی کلیسا کے لیے بڑی خوشی و خرمی کا دن ہے کہ ریورنڈ فادر جوشوا فرہاد اپنی کائنانہ تقرری کی شکر گزاری کی اقدس قربانی اپنی مقامی کلیسا کے ساتھ مل کر خدا کے حضور ادا کر رہے ہیں۔ دوران عبادت ان تمام لمحات کے لیے جس میں خدا نے اپنے بندہ کے ساتھ رہا اور زندگی کے ہر موقع پر مددگار بنا رہا، آج کی تلاوتوں کی روشنی میں جانیں گی کہ کس طرح خدا اپنے بندوں کے ساتھ رہا۔ عزیزو، آئے ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر یہ اقدس قربانی خدا کے حضور گزرائیں۔ میں قادر مطلق خدا آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اقرار کو خواہ ہوتا ہوں، مجھے سب کا سے بے شمار گناہ کیے ہیں، جس کے ہم کے سامنے ہمیشہ کمائی سب رشتہ اور امت ہو، اور آپ سب سے نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ اے میرے پیارے مالک خدا، مجھ میں تو کوئی ایسی خوبی نہیں جو مجھے اس لائق ٹھہرائے، لیکن پھر بھی تو نے اپنے بے انتہا فضل کی کثرت سے یہ پسند کیا کہ میں تیرے گھرانے کے لوگوں کی ہدایت کروں۔ میری مدد کو آ تاکہ میں واجب طور پر اپنے عہدے کے فرضوں کو ادا کروں۔ بخش دے کہ میں ہر بات میں تیرے کہنے پر چل کر اپنے بھائیوں کی نگرانی اور خبرگیری کرتا رہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عشاء کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی سے 9 آیات کا۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ دیکھ میں نے تجھے حکم دیا، پس مضبوط ہو اور دلیری کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دعائیں عزیزوں، آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ جب خداوند کا بندہ موسیٰ فوت ہو گیا تو خداوند نے موسیٰ کے کالم سے کلام کر کے کہا کہ میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، اور اب اٹھ تو اور یہ سب لوگ اردن کے پاس جاؤ، اس ملک کی طرف جو میں بنی اسرائیل کو عطا کروں گا۔ ہر ایک جگہ جسے تمہارے پاؤں کا تلوا پامال کرے گا، میں نے تمہیں دے دی، جیسا کہ میں نے موسیٰ سے کہا تھا۔ بیابان اور لبنان سے لے کر دریائے فرات اور اس بڑے سمندر تک جو آفتاب کے غروب کی طرف ہے، اکیوں کا تمام ملک تمہاری سرحد ہوگی۔ تیری زندگی کے تمام دنوں میں اور تیرے سامنے نہ ٹھہرے
मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम उसका 4वां बाब 14वीं आयत और 5वां बाब उसकी 6वीं आयत का। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि हमारा ऐसा अजीम कायद आज़म है, यानी यीशु मसीह है। तो आए अज़ीज़ों, आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। जबकि हमारा एक ऐसा कायद आज़म है, यानी यीशु इब्ने खुदा, जो अखलाक से गुजर गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा कायद आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानित आजमाया गया। बस आओ हम तवक्कुल के साथ फजल के तख्त के पास जाएं, ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें, क्योंकि हर एक कायद आज़म आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही की खातिर खुदा से मुतल्लिका बातों के लिए मुकर्रर किया जाता है, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजराने वो जाहिलों और गुमराहों की हमदर्दी करने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला होता है। और इसी सबब से लाजिम है कि वो जिस तरह उम्मत के लिए उसी तरह अपने लिए भी गुनाहों की कुर्बानी चढ़ाए। और कोई शख्स ये मर्तबा अपने आप इख्तियार नहीं करता, सिवाय उसके जिसे खुदा हारून की तरह बुलाए। इसी तरह मसीह ने भी कायद आज़म होने की अज़मत अपने आप को ना दी, बल्कि उसी ने जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज ही तू मुझसे पैदा हुआ है। चुनाचा वो दूसरे मकाम में भी कहता है कि तू मलकी सादी के रुतबे पर दायमन काहिम है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे आज की चीजें मुकद्दस खुदावंद को मुकद्दस से बनना। इसके 15वें बाब में से, जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है, वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे। जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है
तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे तो मैं तुम्हें गुलाम ना कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बात से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिन्हें मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। कलाम मुकद्दस की ये आयत, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है, आज के इस दिन के खास मकसद को बयान करती है। जब हम अपने 3 काहिनों को अलतार पर देखते हैं कि जिन्हें खुदावंद ने राहत बख्शी, इन्हें चुना और इन्हें मुकर्रर किया है। कहानत का फजल क्या है? कहानत का फजल खुदावंद यीशु मसीह को पहनना, यानी काहिन यीशु मसीह को पहन लेता है। इसलिए काहिन को लातीनी जुबान में सेकुंडो क्रिस्टी यानी दूसरा यीशु का रूप कहकर पुकारा जाता है। इसे आसान लफ्जों में हम इस तरह भी कह सकते हैं कि काहिन यीशु मसीह का दुनिया में वाज़े मौजूदा सबूत है। यीशु मसीह काहिन की शक्ल में हमारे दरमियान मौजूद रहता है। मुकद्दसा कैथरीन कहती है, जिसने यीशु को देखना है वो काहिन को देखे। और मुकद्दस फ्रांसिस कहता है कि अगर मुझे काहिन और फरिश्ता मिले तो मैं सबसे पहले काहिन को सजदा करूंगा और फिर फरिश्ते को। हम ये तो वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन काहिन क्या है, इसकी वजाहत हमें इब्रानियों के खत की आज की दूसरी तिलावत में मिलती है। काहिन आज़म यानी काहिन आदमियों में से मुंतखब किया जाता है, यानी वो हम सब की तरह एक आम आदमी है, एक आम शख्स है जिसे खुदा चुन लेता है। और ये आयत फिर से हमें याद दिलाती है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। यानी यीशु मसीह खुदावंद खुद चुनता है। कोई आसमान से फरिश्ते की मानद उतरकर काहिन नहीं बनता है, बल्कि वो हम सब में से एक आम शख्स है जिसे खुदा चुन लेता है। और काहिन चुना क्यों जाता है? ताकि वो लोगों की खातिर कुर्बानियां नजर गुजारने, उनके लिए पाक यूक्रिस्ट की कुर्बानी गुजारने, उनके लिए खुदा के हुजूर सजदा दे, उनके लिए दुआएं करें और उनके दुख में, उनकी तकलीफों में उनके काम आए, क्योंकि वो इंसान होते हुए उस दुख और तकलीफ को महसूस कर सकता है जिससे उसका भाई या बहन गुजर रहा है। ये एक रुतबा है, औहदा नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, बल्कि एक रुतबा है जो कोई भी खुद से नहीं ले सकता है। ये रुतबा कोई भी खुद से नहीं ले सकता है, बल्कि ये इस तरह है जिस तरह खुदा ने हारून को चुना, उसे बरकत दी और उसे एक रुतबा अता किया। और ये रुतबा
जिसे हम अजीम रुतबा कहते हैं, वो अजीम इसलिए नहीं क्योंकि एक शख्स को चुनकर काहिन बना दिया गया और वो काहिन बन गया। अजीम इसलिए क्योंकि यीशु मसीह काहिन आज़म है, जो मल्की सादिक के रुतबा पर दाइमन काहिन के तौर पर कायम है। इसीलिए शायर भी गीतों में लफ्ज़ पिरोकर कलीसिया को बार बार सिखाने की कोशिश करता है कि तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। यानी ये अजीम है, रुतबा अजीम है, क्योंकि खुदावंद ने तुझे चुनकर ये रुतबा दिया है। और इसी रुतबे के आला होने की वजह से कलीसिया चंद रवायात को दोहराती है, और वो रवायात बड़ी ज़बरदस्त है कि जैसे ही काहिन मनसब पर उसे चुना जाता है, उसे मसा किया जाता है, तो दूसरे काहिन उसके हाथों को चूमते हैं, उसे गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। और मुबारकबाद देना ये सबसे पहला उस बदन के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना है। जैसे जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो लोग फौरन से जाकर उन्हें मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बल्कि जिस घर में वो पैदा हुआ है उस घर में वो नौजवान लड़का जिसका रुतबा हस्बैंड और वो जवान लड़की जिसका रुतबा वाइफ था, अब उसका रुतबा बढ़ गया है। अब वो हस्बैंड से बाप और औरत आम लड़की से माँ बन गई है, और ये रुतबा उससे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए ये वो रुतबा जो दिया गया काहिन आज़म यीशु मसीह की पैरवी करने से, वो हमेशा कायम है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। चुनीदा शख्स को कायनाना रुतबे पर कायम होने पर मुबारकबाद देना हम सब के लिए फर्ज है, क्योंकि वो खुदावंद के जरिए चुना गया है और उसे मुकर्रर किया गया है। इसलिए अब वो मुबारक है और उसको मुबारकबाद देना हमारा फर्ज बन जाता है। जिस तरह हम खुदा के चुनिंदा को मुबारक कहते हैं, हम मुकद्दसा मरियम को भी मुबारक कहते हैं क्योंकि वो चुनी गई है। इसी तरह हाथों को चूमना ये बरकत हासिल करने का तरीका है, और उन हाथों को इसलिए चूमा जाता है कि वो मसा किए गए हैं। आज के गीत में भी ये जो शुरू का दाखिले का गीत गाया गया है, क्योंकि ये हाथ यीशु मसीह के बदन और खून को छूते हैं। ये हाथ हमारे लिए खुदा के हुजूर हमेशा दुआओं में उठे रहते हैं, और इन्हीं हाथों से हम तक बरकत पहुंचती है। इसीलिए आप भी अपनी नस्लों को सिखाएं कि जब काहिन चुना जाता है, जाकर उसके पहले हाथ चूमें और उसके सामने दोजानो होकर उसे कहें कि मुझे बरकत दे, ताकि वो बरकत जो उसे खुदा ने सौंपी है कलीसिया तक पहुंचे, वो हम सब तक पहुंचे। आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान के इकरार करें। रसूलों का अकीदा मेहरबान खुदावंद से दुआ करें, आलमगीर कलीसिया काहिनों की लाहट को फराग देने में हमेशा कोशा रहे, ताकि काहिनों की कमी कलीसिया में पूरी हो सके। अजीजों दुआ करें। खुदाए कदूस से दुआ करें, पापा आज़म, कार्डिनल, बिशप साहबान, काहिनों की कुल जमात के लिए कि प्यारा खुदावंद इन्हें इस खिदमत में साबित कदम रहने का फजल अता करे।
अजीजों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदाए अजीम से दुआ करें अपने नए तीनों अंडों के लिए, रेवरेंड फादर जोशुआ फरहाद, रेवरेंड फादर हारून खुर्शीद, रेवरेंड फादर सागर नजर के लिए, जिन्हें खुदावंद ने कहानत की अजीम खिदमत के लिए चुना है, कि प्यारा खुदावंद इन्हें खुदा और कलीसिया का वफादार रहने का जज्बा अता करे। अजीजों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदाए मेहरबान से दुआ करें रेवरेंड फादर जोशुआ फरहाद के वालिदैन के लिए, कि जिन्होंने अपने फर्जंद को कामिलाना खिदमत के लिए पेश किया, कि प्यारा खुदावंद इस अमल के वसीले इन्हें अपनी बरकत और फजाइल से माला माल करे। अजीजों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुदाए करीम से दुआ करें रेवरेंड फादर जोशुआ फरहाद के असातिज़ा कराम के लिए, जिनकी मेहनत और काविशों के वसीले खुदा ने अपने बंदा को पानी की खिदमत तक पहुँचाया, कि प्यारा खुदावंद इनकी इस खिदमत को फलदार बनाए। अजीजों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। खुसूसी तौर पर आज दुआ की करता हूँ तमाम अपने खानदान के मजमूमीन के लिए और बिलखसूस अपने काया यूसुफ के लिए कि मेहरबान खुदा की रूह को अपनी आकार उठा करें। अजीजों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करते हैं तमाम कानूनों के लिए, खुसूसी तौर पर सेंट थॉमस पैरिश के कानूनों के लिए, फादर शहजाद, फादर एलिज़ा, फादर अलेक्जेंडर, फादर दिलावर और फादर अफाक के लिए, कि जिन्होंने आज की इस इबादत की तमाम तर तैयारियों को देखा। कि मेहरबान खुदा हमेशा मैंने अपनी हिफाजत बना के रखे, अपनी बरकत और फज़ाइल बना के रखे। अज़ीज़ों दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती हैं, तुझे कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे। इसी हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। हमारे
परवरदिगार, मेरे सब ख़याल कर कि मेरी पूरी ज़िंदगी तेरे कादिर और मेहरबान हाथ में है। जो फ़र्ज़ तेरे फजल से मुझ पर आए हैं, अपने करम से इनके अदा करने में हर वक्त मेरा साथ दे। मौजूदा कुर्बानी की तासीर से काहिन और कौम दोनों दिलो जान से ऐसे चले कि ना आसमान गदा की फरमा बरदारी से और ना ही गदा आसमान की फिक्रमंदी और मोहब्बत से महरूम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है। मैं कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अपनी काहिन है जिसने कायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उससे पहले तो निजात का ज़मीना बनकर अपने आप को तेरी नजर किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्द और सलाम करते हैं। तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया है। इसी तरह उसने खाने के बाद मैन का प्याला पी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और नई अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया है। मेरी याद में यही किया।
हमारे ईमान का भेद। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। अब तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम इसी का बदन और खून देकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक हों। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो, हमारे मुस्तक़बिली और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। इन तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे का हमारे कानूसी के वसीला से तेरी हम को सलाम कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में उस कादर में फिर खुदा बाप को और रूहुल कुद्स की मौजूदियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम छाया हो, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ मांगे जिस तरह खुदावंद ने हमें सिखाया है। तेरा नाम पाके माना जाए।
खुदावंद की सलामती की रहमत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मैं हमें एक दूसरे की सलामती चाहता हूँ। इससे ये है खुदा का बदला जो जहान के गुनाहों को उठाने जाता है। मुबारक हो हम सब जो इस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए। वक़ादर मुझसे खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत आप सब पर नाज़िल और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र।